وزیر اعلیٰ پنجاب نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ سیکٹری تعمیرات اور مواصلات نے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ لیاقت علی رپورٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ آفس میں منعقدہ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے سنگ بنیاد کی تقریب میں صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر مسعود صادق سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ 9 ارب 18 کروڑ روپے کی لاگت سے پاکستان میں بچوں کی پہلی میڈیکل یونیورسٹی بنے گی۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے بچوں کی ریڈیو تھراپی کا جدید سینٹر بھی بنایا جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کی دنیا میں ایک منفرد اور جدید ترین میڈیکل یونیورسٹی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹریننگ کے لیے کالج آف الائڈ سائنسز بنے گا۔ اسی طرح نرسوں کی ٹریننگ اور نومولود بچوں کے علاج کے لیے بھی ادارے قائم ہوں گے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر ڈاکٹرز کو ان کی گراں قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ لکشمی چوک ایبٹ روڈ پر سیوریج کا نظام درہم برہم ہے۔ گندا پانی سڑک پر پھیلنے سے ٹریفک روانی شدید متاثر ہے۔ تاجر برادری نے کاروبار متاثر ہونے کی شکایات کی ہیں۔ شہزیب شہزاد کی رپورٹ۔ شہر کے اکثر مقامات کا سیوریج خراب، ایبٹ روڈ لکشمی چوک کے قریب بھی صورتحال اچھی نہیں۔ ابلتے گٹر ہر طرف گندگی پھیلا رہے ہیں جس سے پیدل سواروں کے ساتھ ساتھ ٹریفک روانے بھی مشکلات کا شکار ہے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ بدبو کے باعث کا حق نہیں آتا اور مہنگائی نے جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ 1.25 مہینہ ہو گیا اس کام کو کہ ہمارے کاروبار تو ویسے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اوپر سے جو رہی گئی کسر ہے اس گندے پانی نے نکال دی ہے۔ ہمارے ایریے کے ایس ڈی او صاحب ہیں، ایس ڈی او انجم صاحب انارکلی کے، ان کو پہلے کافی دفعہ فون کیا تو وہ پہلے فون پہ بات ہوتی تھی کہ ہفتے والے دن ٹھیک ہو جائے گا 2 ہفتوں سے، تو اب وہ ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتے۔ تاجر برادری نے سیوریج مسائل جلد سے جلد حل کرنے کے لیے اعلیٰ حکام سے اپیل کی۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ شہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔ شہر میں کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر میں مسائل سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گنجان آباد علاقوں میں سیوریج انفراسٹرکچر کی صلاحیت کو ہائی رائز بلڈنگ کے لیے ناکافی قرار دے دیا گیا ہے۔ گلبرگ، فیروز پور روڈ اور جوہر ٹاؤن میں بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر سے نئے مسائل پیدا ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر سے قبل واسا نے ماسٹر پلان 2040 تیار کیا۔ واسا نے ٹرنک سیوریج سسٹم بچھانے کے لیے 20 ارب کا تخمینہ لگایا۔ ماسٹر پلان میں شامل 3 منصوبے مزید پیش رفت کے منتظر ہیں۔ ایم ڈی واسا کی سمری پر پنجاب حکومت نے 1 سال بعد بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ رخ کریں گے سیاسی منظرنامے کی جانب تو منشیات برآمدگی کیس میں رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا گیا ہے۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے وزیر داخلہ سمیت دیگر کی بریت کی درخواستیں بھی منظور کر لی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بریت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ منشیات برآمدگی کیس میں بڑی پیش رفت، انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کے جج شیخ نعیم نے رانا ثناءاللہ سمیت دیگر کے خلاف 15 کلو منشیات برآمدگی کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بدترین سیاسی انتقام کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر رانا ثناءاللہ سمیت پارٹی اور سیاسی جماعتوں کے دیگر قائدین کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وقت کے منصف نے سچ، جھوٹ، کھرے کھوٹے، بے گناہ اور گنہگاروں میں واضح لکیر کھینچ۔ دوران سماعت اے این ایف کے 2 اہم گواہ انسپکٹر احسان اعظم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز چیمہ نے رانا ثناءاللہ کے حق میں بیان دیا اور الگ الگ بیان حلفی جمع کرایا، جس میں کہا کہ ان کے سامنے کوئی ریکوری نہیں ہوئی اور نہ وہ وقوع کے وقت وہاں موجود تھے۔ اے این ایف کے پروسیکیوٹر دانش مشکور صدیقی نے دوران سماعت بیان دیا کہ انہوں نے 15 منٹ پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور مزید پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ عدالتی حکم پر دوسرے پروسیکیوٹر نے دلائل دیے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ سمیت دیگر 6 ملزموں کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ وکیل رانا ثناءاللہ فرحاد شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کیس بے بنیاد اور جھوٹا تھا۔ گواہان نے بالکل درست فیصلہ کیا۔ بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ سی این ایس اے لاز کے اندر یہ چیز پرووائڈ کی گئی ہے کہ اگر یہ رانا صاحب کے اگینسٹ کیس ثابت نہ ہوتا تو یہ 15 کلو ہیروئن کے اندر یہ گواہان چارج ہونے تھے اور ان کا ٹرائل ہونا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز سے بچنے کے لیے اس جھوٹے کیس کو آج آ کے ڈس اون کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وٹنسز نے بالکل صحیح پروسیجر جو اڈاپٹ کیا ہے کہ جھوٹ پہ مبنی کیس کو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو اون کریں یا ڈس اون کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں 1 جولائی 2019 کو رانا ثناءاللہ کو 15 کلو منشیات اسمگلنگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 دسمبر 2019 کو رانا ثناءاللہ کی ضمانت منظور کی تھی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے زمان پارک میں مختلف شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔
एजाजुल हक ने कहा कि पीटीएम हुकूमत की पॉलिसीज के बायस मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद हुसैन। जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने मुलाकात की। फौरी इंतखाबात के इनेकाद समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। एजाजुल हक का कहना था कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जमात है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। इमरान खान की जेर सदारत मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी का इजलास भी हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरख हबीब ने कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा ANF ने दर्ज किया था। सलमान शहबाज को NRO2 के जरिए वापस लाया जा रहा है। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि हर तरफ करप्शन का बाजार गर्म है। NRO2 के नतीजे में ना सिर्फ शहबाज शरीफ के, हमजा के, आसिफ अली जरदारी के केसेस ख़त्म हुए, बल्कि अब सुलेमान शहबाज जो कि मफरूर थे, जो इश्तिहारी थे, वो भी मुल्क के अंदर जो है वो अब वापस आ रहे हैं। और उनको वापस आने से पहले कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी की ज़मानतें मिल जाती हैं, हफाजती ज़मानतें मिल जाती हैं। इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो इस मुल्क में ठेकेदारी और ये जो माशाल्लाह से जिस तरह से बड़े बड़े पुल, सड़कें और जो कुछ तामीर किया जाता रहा, उसके ऊपर जो ये कमीशन माफिया है, जो ठेकेदार माफिया है, जिनकी वजह से फिर लंदन के अपार्टमेंट बनते हैं, जिनकी वजह से मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, ये बनता है। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर दिन भर उनके चाहने वालों का तांता बंधा रहा, जबकि कैलीग्राफी आर्टिस्ट आयशा कमाल ने इमरान खान के ऑटोग्राफ से मुज़य्यन फनपारों को जमान पार्क के बाहर आवेजा किया। वजीराबाद में इमरान खान हमले केस में GIT की तफ्तीश जारी है। PTI रहनुमा GIT के सामने पेश ना हुए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर और डॉक्टर यास्मीन राशिद अपना बयान रिकॉर्ड करवाने CCPO ऑफिस नहीं पहुंचे। फैसल वाउडा भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाने GIT के सामने पेश नहीं हुए। PTI के तीनों रहनुमाओं को हफ्ते के रोज़ 12 बजे दोपहर CCPO ऑफिस बुलाया गया था। GIT CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में इमरान खान के हमले की तफ्तीश कर रही है। GIT जाए वक़ुआ से मिलने वाले तमाम शवाहिद फोरेंसिक लैब में भिजवा चुकी है। GIT की पूरी टीम CCPO ऑफिस में भी मौजूद रही। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि सबको इल्ज़ामात की सियासत से बाहर निकलना होगा। इमरान खान सब पर इल्ज़ामात लगाते रहे, आज उन पर भी क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लग रहे। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस का सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने डिफेंस में सीनियर रहनुमा बेगम शमीम न्याजी की खैरियत दरियाफ्त करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में कठिन हालात हैं, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मिलजुल कर निकालना होगा, ये मुल्क सबका है। पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें आपस में मिलजुल कर जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी मुश्किलात हैं, उसका हल ढूंढना है, उसका मुकाबला करना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, पार्लिमान को इज्जत देनी है। राजा परवेज अशरफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, हमें इल्जामात की सियासत से निकलना होगा। किसी प्रेशर में किसी रुकन के दिए गए इस्तीफे को कैसे कबूल करूं? इमरान खान साहब ने इल्जामात लगाए बहुत, हमने भी एक दूसरे पर लगाए, आज उन पर क्या क्या इल्जामात लग रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है ख़त्म होना चाहिए। सूबाई पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि वो चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत तब्दील हो जाए, मगर आईनी तरीके से। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। शाम के औकात में आलूदगी के तनासुब में कमी, लाहौर का ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 138 रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में AQI 203 रिकॉर्ड किया गया। हमजा खुर्शीद रिपोर्ट कर रहे हैं। शहर में शाम के वक्त आलूदगी के तनासुब में कमी रिकॉर्ड की गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 138 रिकॉर्ड किया गया, जबकि सुबह के वक्त ये 203 रिकॉर्ड किया गया था। इसके बावजूद डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। डॉक्टर का कहना है कि शहरी बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरी जानिब बारिश न होने की वजह से स्मोक का दुरानिया बढ़ गया है। स्मोक बढ़ने की वजूहात फसलों की बाकियात जलाना और धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं। कैमरामैन शहबाज अनीफ के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। कानूनी ज़ाब्ता अखलाक को पामाल किया है। PHA ने महकमाना तौर पर मियावाकी जंगल में होने वाली बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। करप्शन साबित होने पर ऑफिसर से रिकवरी की जाएगी। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखें।
शहर में बनने वाले मियावाकी जंगलों में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। मियावाकी जंगल बनाने में PHA जोन 1 ने कानूनी ज़ाब्ता इखलाक को पामाल किया। मंसूबा साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में मुकम्मल हुआ। मुबैना करप्शन पर महकमा एंटी करप्शन को मौसूल दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ। PHA ने महकमाना तौर पर मियावाकी जंगल में होने वाली बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी का आगाज किया। इल्जाम आयद किया गया है कि PHA जोन 1 में मियावाकी जंगल का काम करने से कबल 78 लाख रुपए की अदायगी की गई। PC1 के मुतजाद गमलों के बजाय थैली वाले पौधे लगाए गए। मियावाकी साइट पर 3 फीट तक मट्टी डाली जानी थी, जो कि नहीं डाली गई। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अली नवाज शाह, सुपरवाइजर रिजवान अजहर के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। MS रूट्स नर्सरी मुबैना बेज़ाब्तियों में मुलव्विस पाई गई। मियावाकी जंगल में करप्शन साबित होने पर ऑफिसर से रिकवरी की जाएगी। वास्ता हुकाम के बड़े दावों के बावजूद ड्रेनों की मुकम्मल सफाई नहीं हो सकी। स्मोक का बहाना बनाकर डीसल्टिंग का अमल रुक गया है। नकासी आब के बड़े नाले गुलबर्ग ड्रेन की डीसल्टिंग ना हो सकी। स्मोक का सीजन शुरू होने के बाद वासा ने बड़ी मशीनरी के इस्तेमाल पर तो पाबंदी लगा दी, मगर नकासी आब के बड़े नाले की मुकम्मल डीसल्टिंग ना हो सकी। शहर की मरकजी ड्रेन पानी का नाकास करने के बजाय बंद नजर आ रही है। वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद मरकजी ड्रेनों की मुकम्मल सफाई ना हो सकी। दूसरी जानिब MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि तमाम ड्रेनों की डीसल्टिंग का काम मरहलावार जारी है। कराची के बाद लाहौर में भी आटे का मसनूई बहरान पैदा हो गया है। लाहौर में खपत के मुकाबले में 1 लाख आटे के थैलों की सप्लाई कम होने का इंकशाफ हुआ। 20 किलो आटे का थैला 1250 के बजाय 1400 रुपए में बिकने लगा है। शहरी बाजार से सब्सिडाइज के बजाय महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। महंगाई के मारे आवाम के लिए नया इम्तिहान। लाहौर में सब्सिडाइज आटे की किल्लत बढ़ गई। मुतअद्दिद स्टोर्स पर आटा महंगे दामों फरोख्त होने लगा। महकमा खुराक की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक रायवन, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन, चुंगी, अमर सिद्धू के इलाकों में आटा नायाब हो गया। अनारकली, फतेहगढ़, हरबंसपुरा में आटा महंगे दामों फरोख्त होने लगा। गंदम का सरकारी रेट 2300 रुपए फी मन मुकर्रर है। महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसी के बाइस गंदम 3400 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर समेत दीगर जिले अफसरान ने हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट देकर राम कर दिया। अफसरान का कहना है कि गंदम की सप्लाई पूरी है। महंगा आटा फरोख्त करने वाले दुकानदारों और मिल्स मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। कोई हमें वायोलेटर्स मिलते हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो आटे की होर्डिंग या ओवर चार्जिंग करते हैं, तो हम उस सिलसिले में जो है ना एक्शन ले रहे हैं। अभी तक हमने 350 तक जो लाइसेंसेज हैं वो हमने मुअत्तल किए हैं, और जो कुछ जो लोग जो ओवर चार्जिंग कर रहे थे उन पे हमने FIRs भी दी हैं। लाहौर को 26 जोन पे तकसीम किया हुआ है और सारे बंदे ड्यूटीज़ कर रहे हैं। हमने बाहर से भी अपने डिवीज़न से स्टाफ बुलाया हुआ है। सर्वे भी हो रहा है। फ्लोर मिलों से आटा हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% आटा निकले। अब ये जो बाहर है थोड़ा बहुत लोग आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको पकड़ रहे हैं। शहरियों ने महकमा खुराक के दावों को झूठ करार दे दिया। खरीदार कहते हैं मार्केट में कहीं भी सस्ते दामों आटा दस्तयाब नहीं। आटा लेने के लिए आए थे, आटा नहीं मिला। महंगाई बढ़ी है। जो आटा तकरीबन 80-85 लेते थे वो 100 से ऊपर है। आटा जो है ना वो मिल ही नहीं रहा है। अगर कहीं किसी जगह से मिल रहा है तो वो 1650 रुपये का तोड़ा मिल रहा है, और आटा भी सही नहीं मिल रहा है। आटा शार्ट है और जो मिल रहा है वो 1600 रुपये का थैला मिल रहा है 15 किलो वाला, और 20 किलो वाला आटा गायब हुआ है काफ़ी देर से। चक्कर लगा के ना हम लोग थक गए हैं दुकानों पे, लेकिन आटा हमें जो ना अभी तक मिल नहीं रहा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है महकमा खुराक आटे की सप्लाई पूरी करने में नाकाम है। जो मार्केट में थोड़ी बहुत सबस थैले की कमी महसूस की जा रही है, और उसका जो बेसिक रीज़न है वो गंदम का कम होना है। जैसे ही वज़ीर आला साहब इजाज़त देंगे, गंदम का इजरा जैसे ही मार्केट में अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाएगा तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी। मार्केट में ज़राए के मुताबिक शहर में 996 रजिस्टर्ड स्टोर्स हैं और 2,50,000 आटे के थैलों की डिमांड है, जबकि ओपन मार्केट में 1,50,000 आटे के थैले सप्लाई किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ मामूल है कि पानी सर से गुजर जाने के बाद होश आता है। नई गंदम की मार्केट में आमद अभी दूर है। जबकि आटे के हालिया बहरान पर फौरी काबू ना पाया गया तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ आटा नायाब होगा बल्कि इसकी कीमतों को भी पड़ लग जाएंगे। कैमरामैन सलमान राजा के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। हर सू महंगाई का ही चर्चा है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रिलीफ देने के बजाय हुकूमत समेत सब ने अपना अपना हिस्सा बढ़ा लिया है। पेट्रोलियम लेवी, फ्रेट चार्जेस, मार्केटिंग कंपनीज और डीलर मार्जिन समेत तमाम इजाफी अखराजात का बोझ आवाम पर डाल दिया गया है। साल भर में
पेट्रोल 54 और डीजल 65% महंगा हुआ है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। अवाम गुज़श्ता कई माह से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के मुंतज़र, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का जरिया बना लिया। गुज़श्ता साल 1 दिसंबर से रवां साल दिसंबर तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 267% इजाफे से 13 रुपए 62 पैसे से 50 रुपए फी लीटर हो गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 34% इजाफे से 2 रुपए 97 पैसे से बढ़कर 4 रुपए फी लीटर हो गया। डीलर्स मार्जिन 79% इजाफे से 7 रुपए फी लीटर तक चला गया। मजमूई तौर पर पेट्रोल साल भर में 54% इजाफे से 145 रुपए 82 पैसे से बढ़कर 224 रुपए 80 पैसे फी लीटर तक जा पहुंचा। अवाम कहते हैं आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो रही हैं, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम नू रिलीफ मिलेगा तो अवाम इन्हां दे नाल होएगी, अगर अवाम नू रिलीफ ना मिलिया तो कोई अवाम इन्हां दे नाल साथ इन्हां दा नहीं देगी। आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। आलमी मंडी में कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, लेकिन हमारी हुकूमत इसको कम नहीं कर रही। जब बढ़ता है तो 1 मिनट से पहले बढ़ा देते हैं कि लो जी आलमी मंडी में 10% बढ़ाएंगे, यहाँ 50% बढ़ा देते हैं, लेकिन आलमी मंडी में 100% भी कम है, यहाँ 10% भी कम नहीं करते। ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और सनती शोबे के लिए अहमियत रखने वाला डीजल भी 65% महंगा होकर 235 रुपए 30 पैसे का हो चुका, जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 90% इजाफा हुआ, जबकि डीलर्स मार्जिन में 112 और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्जिन में 71% इजाफा किया गया है। माहिरीन मईशत कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने में डॉलर का बड़ा हाथ है, जिससे सारी मईशत दबाव में है। पिछले 1 साल के अंदर जो इन्होंने इस पेट्रोलियम पे लेवी लगाई है वो 260% बढ़ाई है, यानी कि ये 13 रुपये होती थी, अब माशाल्लाह इन्होंने 50 रुपये कर दी है। अच्छा, इसका इफेक्ट ये भी आ रहा है कि ये डॉलर जो था वो उस वक्त 1 साल पहले अगर आप लगाएं तो 160 रुपये का था, और आज इंटर बैंक रेट 225-230 है और लोकल मार्केट 250 हो गई है, तो वो भी इफेक्ट आ रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत मुसलसल गिर रही है, लेकिन IMF की शर्त पर हुकूमत बजट आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स कम नहीं कर सकती, इसलिए बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान भी कम ही है। महंगाई की शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का भी बड़ा हाथ है, जिससे न सिर्फ मुल्क की मईशत सुस्त रवी का शिकार है, बल्कि अवाम की जेब पर भी भारी बोझ है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। एहतसाब अदालत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत हुई। मुल्ज़िमान के सीनियर वकील के मौजूद ना होने पर जिरह ना हो सकी। अदालत ने वकला को गवाहान के बयानात पर जिरह के लिए 7 जनवरी को तलब किया है। नोमान नूर की रिपोर्ट। आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज साजिद अली आवान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत की। नैब के गवाह आरिफ मजीद भट्ट और गवाह इसरार सईद पेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जगह उनके प्लीडर इनवार हुसैन पेश हुए। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है। साबिक DGLDA अहद चीमा ने पेश होकर अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाई। रेफरेंस में फवाद हसन फवाद को भी हाज़िरी से इस्तिस्ना मिल चुका है। सीनियर वकील ने कहा कि अमजद परवेज़ मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकते, इस्तदा है कि अगली तारीख दी जाए। मुल्ज़िमों के सीनियर वकील के मौजूद न होने पर जिरह न हो सकी। अदालत ने वकील अमजद परवेज़ को गवाहों के बयानात पर जिरह के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कुरान मजीद को कुरान बोर्ड की इजाज़त के बगैर छापने के खिलाफ दायर दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस शुजात अली खान ने अपने तहरीरी हुक्म में करार दिया कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यकीन दहानी करवाई है कि अदालती अहकामात पर सख्ती से अमल होगा। सेक्रेटरी के मुताबिक कुरान मजीद की इशाअत से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का काबीना मीटिंग करेंगे। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यकीन दहानी करवाई है कि पुलिस समेत तमाम इदारे अदालती हुक्म के नफाज के लिए ताउन करेंगे। आलमी यौम इंसानी हुकूक की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा की खुसूसी शिरकत। हर सतह पर इंसानी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार का प्रचार किया गया। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखें। 90 शाहराह ऐवान वज़ीर आला में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और वजारत इंसानी हुकूक के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम इंसानी हुकूक की मुनासबत से तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा का कहना था कि तहरीक इंसाफ के कायदीन के खिलाफ दीदा दिलेरी से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के कायदीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जिस दीदा दिलेरी के साथ जो है मुखालफिन के खिलाफ रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, इसकी मिसाल कभी पहले 75 साल तारीख में नहीं मिलती।
چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز عبد المنان خرم نے کہا کہ آج کا دن انسانی حقوق کے حوالے سے عہد کا دن ہے۔ رنگ و نسل کے بت توڑنے ہوں گے، انصاف کے تقاضوں میں سب برابر ہیں۔ پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے ایک عہد کرنے کا دن ہے۔ وہ عہد یہ ہے کہ کوئی ریاستی جبر نہیں ہوگا، کوئی تفریق نہیں ہوگی، کسی کالے میں، کسی گورے میں، کسی عربی پر، کسی اجمی کو کوئی فوقیت نہیں۔ رنگ و نسل کے یہ جو بت ہیں ان کو توڑنا ہے۔ تقریب میں سیکرٹری انسانی حقوق مقصود، مہندر پال، مس عروج اور دیگر نے شرکت۔ LTA کی کتنی املاک ہیں اور کتنے اثاثے؟ افسران تخمینہ لگانے میں ناکام ہو چکے۔ اتھارٹی نے املاک اور جائیدادوں کا تخمینہ لگانے کے لیے پرائیویٹ کمپنی کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 52,80,000 روپے خرچ آئے گا۔ زین العابدین رپورٹ کر رہے ہیں۔ LDA کتنے اثاثوں کا مالک ہے؟ انتظامیہ لا علم۔ LDA کے آفیسرز املاک اور جائیدادوں کا تخمینہ لگانے میں ناکام۔ LDA کے شعبہ ہاؤسنگ کو اثاثہ جات کی فہرست بنانے کا حکم دیا گیا۔ LDA کی آمدن میں اضافے کے لیے پراپرٹیز کو نیلام کیا جانا تھا۔ ورکنگ گروپ کو پراپرٹیز کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پراپرٹیز کی تخمینہ لاگت سے مکمل رپورٹ بھی جمع کروائی جانا تھی۔ LDA کے ملکیتی پلاٹوں کی فروخت سے ادارے کے امور اور ترقیاتی کاموں پر اخراجات کیے جانا تھے۔ LDA کا شعبہ ہاؤسنگ ان املاک اور جائیدادوں کا تخمینہ نہ لگا سکا۔ اتھارٹی نے املاک اور جائیدادوں کا تخمینہ لگانے کے لیے پرائیویٹ کمپنی کا سہارا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایویلویٹرز فار ایویلویشن LDA پراپرٹیز کے لیے فرم ہائر کی جائے گی۔ اثاثہ جات کا تخمینہ لگانے کے لیے LDA 52,80,000 روپے سرکاری خزانے سے ادا کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ، اشتہاری مہم چلانی ہے تو فیس ادا کرنا پڑے گی۔ PHA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریونیو میں اضافے کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اسپانسرڈ گورنمنٹ مہم میں کمرشل فیس کا 30% اور نان اسپانسرڈ کیٹیگری مہم میں کمرشل ریٹ کا 10% حکومتی اداروں سے وصول کیا جائے گا۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ سرکار کے مفت اشتہاری مہم چلانے کی موجیں ختم ہو گئیں۔ لاہور کی سڑکوں پر سٹیمر لگانے ہیں تو PHA کو فیس ادا کرنا پڑے گی۔ سپانسرڈ اور نان سپانسرڈ اشتہاری مہم کے لیے فیسیں مقرر کر دی گئیں۔ PHA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیسیں عائد کرنے کی منظوری دے دی۔ شہر کی سڑکوں کی کیٹیگری کے حوالے سے بھی فیس واضح کر دی گئی ہے۔ حکومتی اداروں کی جانب سے PHA کی منظوری کے بغیر اشتہاری مہم چلائی جاتی ہے۔ سپانسرڈ گورنمنٹ مہم میں کمرشل فیس کا 30% بطور فیس وصول کیا جائے گا۔ سپانسرڈ مہم میں A کیٹیگری 1,500 روپے، B کیٹیگری 1,290 روپے فیس وصول کی جائے گی، جبکہ C کیٹیگری کی 1,080 روپے، D کیٹیگری کی 870 روپے فیس ادا کرنا پڑے گی، E کیٹیگری کا 660 اور FG کیٹیگری کے 450 روپے وصول کیے جائیں گے۔ نان سپانسرڈ گورنمنٹ مہم کے عوض بھی PHA فیس وصول کرے گا۔ نان سپانسرڈ کیٹیگری مہم میں کمرشل ریٹ کا 10% حکومتی اداروں سے وصول کیا جائے گا۔ A کیٹیگری 250 روپے، B کیٹیگری 215، C کیٹیگری کی 180 روپے فیس ہوگی، D کیٹیگری کی 145 روپے، E کیٹیگری کا 110 اور FG کیٹیگری کے 75 روپے وصول کیے جائیں گے۔ سرکاری سطح پر 50 اسٹریمرز کی اشتہاری مہم چلانے پر کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ PHA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلے کے میٹنگ منٹس کے بعد نئی فیس عائد کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ فیروز پور روڈ پر واقع کوٹ لکھپت سبزی منڈی کی اراضی پر ہاسپٹل کی تعمیر کا منصوبہ لٹک گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر LDA نے نیا پلان بنا لیا۔ سبزی منڈی کی اراضی پر ہاسپٹل سمیت سیوک سینٹر، کمرشل پلازے اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ فیروزپور روڈ پر عرفہ ٹاور سے ملحقہ اراضی پر ہاسپٹل کی تعمیر کے منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سبزی و فروٹ منڈی کوٹ لکھپت کی اراضی پر ہسپتال کی تعمیر سے متعلق ایک نیا فیصلہ سامنے آ گیا۔ اب ہاسپٹل سمیت سیوک سینٹر، کمرشل پلازے اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ ماضی میں سبزی منڈی کی 152 کنال میں سے 122 کنال اراضی محکمہ صحت کو دے دی گئی تھی۔ محکمہ صحت وضع کردہ ڈیڈ لائن پر اراضی کے عوض پیسے ادا نہ کر سکا۔ LD نے توسیع کے باوجود پیسے جمع نہ کروانے پر محکمہ صحت کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سبزی منڈی کے لیے نیا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ سبزی منڈی کی 122 کنال اراضی کی بجائے 59 کنال 9 مرلے اراضی پر ہاسپٹل بنے گا۔ باقی ماندہ اراضی پر سیوک سینٹر اور بلند و بالا عمارتیں بنے گی۔ عرفہ ٹاور کی مانند سبزی منڈی کی اراضی پر 24 کنال پر مشتمل IT ٹاور تعمیر کیا جائے گا۔ کمرشل سرگرمیوں کے فروغ کے لیے 4 پلاٹس کو فروخت کیا جائے گا۔ 45 کنال رقبے پر 11 کنال کے 3 اور 13 کنال کا 1 کمرشل پلاٹ فروخت کیا جائے گا۔ فروٹ منڈی کی اراضی میں سے 2 کنال 7 مرلے اراضی پر مسجد بھی تعمیر کی جائے گی۔ گندے پانی کے نکاس کے لیے 18 کنال 5 مرلے اراضی پر پمپنگ سٹیشن تعمیر ہوگا۔ کوٹ لکھپت منڈی اراضی کے نئے لے آؤٹ پلان کی منظوری LDA کی گورننگ باڈی سے لی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔
पाक्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों पर अमल दरामद ना कर सकी, जारी और नए मंसूबे मुकम्मल ना कर सकी। पाक्स की बहाली के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स दीगर स्कीम्स पर खर्च हो गए। पंजाब बजट में मंजूर शुदा 2 स्कीम्स भी शुरू होने की मुंतज़िर हैं। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। PHA बजट 2021-22 और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले अमल दरामद के मुंतजिर। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल न कर सकी। PHA रवा माली साल में कोई नया पार्क न बना सकी। PHA ने माली साल में 4 अरब 41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, ताहम PHA को माली साल में 1 अरब 26 करोड़ रुपए खसारे का सामना करना पड़ा। 3 अरब 32 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में अदा कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने पार्कों की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस किए। PHA रवा माली साल में पार्कों की मुरम्मत और बहाली पर मंजूर शुदा बजट खर्च न कर सके। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के लिए मुख्तस 8 करोड़ 40 लाख रुपए भी खर्च न हो सके। रवा साल जिलानी पार्क में रेस कोर्स में जिपलाइन की तामीर का काम भी न हो सका। पंजाब बजट में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर को सिर्फ 2 स्कीमें मिली। PHA को हॉर्टिकल्चर के लिए नया इदारा बनाने का टास्क सौंप दिया गया। रवा माली साल कायदे आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप तश्कील न दिया जा सका। हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट के लिए माली साल 2021-22 में 20 लाख रुपए मुख्तस किए गए, ताहम ये फंड्स सरेंडर हो गए। बागे जिना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 2 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए मुख्तस किए गए, मगर इस हवाले से कोई काम ना हो सका। फिरोजन रोड पर कमर्शलाइजेशन की इजाज़त के बाद नए कानून मुतारिफ करवा दिए गए। LTA ने बिल्डर्स को कमर्शियल होने वाली सड़कों पर मशरूत हाई राइज बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दे दी है। 4 कनाल और इससे ज़ायद प्लॉट पर 7 मंजिला इमारत बनाने की इजाज़त दे दी गई है। फिरोजन रोड पर नए कानून मुतारिफ। LDA ने बिल्डर्स को कमर्शियल होने वाली सड़कों पर मशरूत हाई राइज बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दे दी। रायवन रोड पर 4 केनाल या जायद प्लॉट पर बिल्डिंग रेगुलेशंस के तहत ग्राउंड और 7 फ्लोर बनाने की इजाजत। रायवन रोड पर 2 से 4 केनाल प्लॉट पर ग्राउंड और 6 मंजिला इमारत बनाने की मंजूरी। 10 मरले पर ग्राउंड और 4 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत होगी। मौलाना शौकत अली रोड खयाबान जिना पर भी 4 केनाल के प्लॉट पर ग्राउंड और 7 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत। बाईपास लाहौर टाउन पर 4 केनाल के प्लॉट पर ग्राउंड और 10 मंजिला तक बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दे दी गई। LDA ने नई कमर्शियल होने वाली सड़कों पर मुख्तलिफ इक़साम के कारोबार करने से भी रोक दिया। कमर्शियल होने वाली सड़कों पर होलसेल मार्केट, लोडिंग इन लोडिंग के गोदाम बनाने से रोक दिया गया। सड़कों की कमर्शलाइजेशन और कवानीन से मुतालिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत पंजाब का बल्दिया अज़मा लाहौर को तरक्याती स्कीम्स फौरी लगाने का इशारा मिल गया। 4 साल बाद N125 में तरक्याती कामों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को 1 अरब 25 करोड़ के फंड्स मिल गए। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखें। सियासी हलचल में भी हुकूमत की अपनों पर नवाजिशात। हुकूमत पंजाब का बल्दिया उज़्मा लाहौर को तरक्याती स्कीमें फौरी लगाने का इशारा मिल गया। 4 साल बाद N125 में तरक्याती कामों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को 1 अरब 25 करोड़ के फंड्स मिल गए। हल्के में 21 तरक्याती स्कीमों के टेंडर लगा दिए गए हैं। हल्का N125 के अमीन पार्क, करीम पार्क में 10 करोड़ की तरक्याती स्कीमें लगा दी गई हैं। नीला गुम्बद, बांसावाला बाजार में 10 करोड़ के तरक्याती काम मंजूर हो गए। शाम नगर, बेरी पीर रोड, गुलशन रावी, जुबैर रोड में भी 10 करोड़ की तरक्याती स्कीमें मुकम्मल होंगी। उर्दू बाजार, धूपसड़ी रोड, ऐसा अखबार मार्केट में 8 करोड़ की स्कीमें लगा दी गई। मैसन रोड, बिलाल पार्क, शाम नगर, इस्लामपुरा में 10 करोड़ से सड़कों की तामीर और बहाली होगी। सांदा कच्चा रशीद रोड, बंद रोड, अफजल पार्क के लिए 10 करोड़ के टेंडर लगा दिए गए। कच्चा रावी रोड, मेन बाजार कसूरपुरा के लिए 15 करोड़ की स्कीमें मंजूर। चुबुर्जी मलिक मुनीर रोड, मुस्लिम पार्क के लिए 8 करोड़ की तरक्याती स्कीमें लगा दी गई। धूपसड़ी कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। तरक्याती स्कीमों के फंड्स की इजाजत बल्दिया उज़्मा लाहौर ने दी। 37 कंपनियों में से सबसे कम बोली देने वाली कंपनी को टेंडर दिए गए। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। सियासी कशीदगी अपनी जगह, लेकिन तरक्याती काम नहीं रुकेंगे। पंजाब हुकूमत ने LDA को T जंक्शन बंद रोड मंसूबा शुरू करने का हुक्म दे दिया है। LDA ज़ाती वसाइल से 1 अरब रुपए मंसूबे के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। बाकी रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। एक जानिब असम्बली की तहलील की गूंज, दूसरी तरफ तरक्याती कामों पर जोर। पंजाब हुकूमत ने LDA को एक और मनसूबा फिलफौर शुरू करने का हुक्म दे दिया। बंद रोड पर गुलशन रावी T जंक्शन के मुकाम पर अंडरपास तामीर किया जाएगा। मनसूबे के लिए LDA 20% और पंजाब हुकूमत 80% फंड्स देगी।
मंसूबे के लिए कुल 4 अरब 84 करोड़ 29 लाख 90 हजार रुपए का तखमीना लगाया गया। LDA ने 1 अरब रुपए मंसूबे के लिए जारी कर दिए। मंसूबे के PC1 के मुताबिक 2 किलोमीटर तवील कॉरिडोर पर 6 लेन पर मुश्तमिल सड़क तामीर की जाएगी। गुलशन रावी अंडरपास 3 लेन पर मुश्तमिल और 5.1 मीटर ऊंचा तामीर किया जाएगा। मंसूबे की तामीर से रोजाना 1,38,960 गाड़ियों को फायदा मिलेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। 1 साल से जायद का अरसा गुजर गया, गैस के नए कनेक्शन पर से पाबंदी ना उठाई जा सकी। वजारत पेट्रोलियम ने हॉस्पिटल्स को गैस के न्यू कनेक्शन देने से भी इनकार कर दिया है। फहद अमीन रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की कमी के बायस नए कनेक्शंस पर भी पाबंदी ताहाल खत्म न हो सकी। वजारत पेट्रोलियम ने महकमे सेहत के ज़ेर तामीर हस्पतालों को गैस कनेक्शन फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब सुई नॉर्दर्न सुई सदरन को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले में कहा गया कि गैस की तलब और रसद का फर्क बहुत ज्यादा है। इस सूरत हाल में कनेक्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। ज़राए के मुताबिक गैस तकसीमकार कंपनियों की जानिब से तमाम हालात वाक़यात देखकर फैसला किया जाएगा। LTA का जौहर टाउन में सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का मंसूबा ड्रॉप हो गया है। अब्दुल हक रोड को सिग्नल फ्री बनाने के बजाय मुरम्मत और बहाली का प्लान बना लिया गया है। 4 करोड़ 20 हजार रुपए की लागत से मंसूबा 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखें। LTA का जौहर टाउन में सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का बड़ा मंसूबा ड्रॉप हो गया। अब्दुल हक रोड को सिग्नल फ्री बनाने के बजाय मुरम्मत और बहाली का प्लान बना लिया। LTA की जानिब से 2017 में बनाए जाने वाले मंसूबे पर अमल न हुआ। LTA ने डॉक्टर्स अस्पताल से सदरन बाईपास तक सड़क की बहाली का प्लान बनाया। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत गवर्निंग बॉडी इजलास में अब्दुल हक रोड की मंजूरी भी दी गई।